अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुतज़्ज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर। तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम सियापा विद काका। लाहौर रंग ते सानू देख रहे हो नाज़रीन। एक होर वीकेंड एक होर अच्छा एपीसोड लैके तुहाडे कोल आ गए हैं। अज कुछ जल्दियां गल्लां तुहाडे नाल शेयर करांगे जो अजकल दे हालात हो गए आ, जो मुल्क दे हालात हो गए आ, जो रोज़गार दे हालात हो गए आ। हर बंदा स्ट्रगल कर रहा। सेविंग्स जिहड़ियां वो बहुत कम हो रही ने। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਥ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੇਜ਼ ਨਿੰਮਕੋ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਢੀਠ ਪਰਾਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਾ ਕੇ ਚਿਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚਿਕਨ ਪਕਾਓ। ਉਹ ਘਰ ਚਿਕਨ ਪੱਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਚਲੋ ਚਾਹ ਵੀ ਪਕਾ ਹੀ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਜ਼ਰੀਲੇ ਪਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 500,000 ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੋ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਮਰੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਫੌਤਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਪੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਆ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆ ਭਤੀਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁਣ ਖੜਕਣ ਦਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋ, ठीक है। आओ मेरे पीछे सियापा शुरू करते हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लोइजा। लोइजा, इसका क्या मतलब होता है? लोइजा का मतलब होता है आदम की बेटी। आदम की बेटी, ये मैंने पहली दफ़ा नाम सुना। किसने रखा था ये नाम? ये मेरे बाबा ने रखा था। बाबा ने रखा था। आपका क्या नाम है? दानियाल। दानियाल, थोड़ा सिंपल ही रखे है, बेटियां ना ज़्यादा प्यार करते हो, तुहाडा दानियाल रख देता है। अच्छा, आप बड़ी हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर मेरा। क्या कर रही हैं? मैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, दिमाग पढ़ लेती हैं? ऐसा वैसा। ऐसा वैसा। घर वाले फ़ायदा उठाते हैं आपका कि कोई गेस्ट आया है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किस मकसद से आया, ये कज़न क्यों आया यहाँ पे, ये फूफो क्यों आई है, ये खाला क्यों आई है, दिमाग पढ़ लेती हैं? हाँ, वो तो सबका ही पढ़ा जाता है, घर वालों से पहले ही पढ़ लेती हूँ मैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन लेवल कैसा हो जाता है एक साइकोलॉजिस्ट का, कैसा होता है एक नॉर्मल पर्सन का कैसा होता है? ऑब्जर्वेशन लेवल साइकोलॉजिस्ट का पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो साइकोलॉजी में जाते हैं। हाँ, तो हाँ, तो आप दिमाग पढ़ लेती हैं। मुझे ये बताएं कि किस लेवल के गेस्ट आते हैं? कभी ऐसा हुआ है गेस्ट आए हैं, उनके साथ कोई ऐसे किस्म के जालिम बच्चे आ गए हैं, उन्होंने घर में उधम मचा दिया है और चीज़ें इधर उधर हो रही हैं और आप तंग आ गए हो कि किसी तरीके से ये अपने घर चले जाएं? नहीं, हमारी मतलब आजकल ये होता है कि बच्चे उधम नहीं मचाते, तूफानी बच्चे नहीं आते, बड़े ज़्यादा बच्चे बने हुए हैं। हाँ, बड़े कैसे बच्चे बने हुए हैं? बड़े जो रिश्तेदार होते हैं, मैं अब ज़्यादा नहीं ना कहना घर जाने मैंने। वही ना, जाते हुए फोन आ जाए कि आपकी बच्ची ने हमें ट्रोल कर दिया। हाँ, वो आप नाम लिए बगैर भी कह सकती हैं ना, आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं। आते हैं ना, कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना जो बगैर आ जाते हैं, ना खुशी है ना गमी है। हमारे नहीं आते। हाँ, आप अच्छी तरह मुंह नहीं लगाते हो ना किसी को? नहीं, हम ना कहीं जाते हैं ना कोई आता है, ये वाला सीन है। हाँ, लिमिटेड सा काम है। हाँ, सारी फैमिली का ही ऐसा है। अच्छा, कोई भी नहीं आता जाता, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मेरी पीछे से फैमिली है ना, उनकी आदत है वो मिलते नहीं है किसी से। आपस में भी ईद पे भी बस मिल लिया, 6-6 महीने बाद मिल, तो वो भी ऐसे ही आगे बच्चों में भी वही आया हुआ है। अच्छा, कई जॉइंट फैमिली में मिलते जुलते ज्यादा हैं, कई
में रिवाज नहीं होता ज्यादा आने जाने का, वरना बस एक घर तक ही लिमिटेड हो जाते हैं। हाँ तो हमारा यही है। ठीक है, तो ये भाई ने क्या बनना है बड़े हो गए, आप तो साइकोलॉजिस्ट बने होंगे। क्या बनना है? मैंने लॉयर बनना है। तो ये तो आपका दिमाग खा जाएगी भाई, आपकी दलीलें नहीं मानेगी। बड़ी बहन साइकोलॉजिस्ट होगी और आपकी तो दलीलें मानी नहीं जाएंगी घर में। वो वैसे भी नहीं मानती, अभी बनाने के लिए नहीं मानती। आप दोनों की लड़ाई ज्यादा किस बात पे होती है आपस में? किस बात पे होती है? अभी हुई है, पिक्चर्स नहीं लेता सही मेरी। अच्छा, आप इसको कहती हैं मेरी पिक्चर्स उतारो, सही नहीं लेता? नहीं लेता, बस क्लिक किया और जान छुड़वा दी। हाँ, ये वाला सीन है। एंगल्स ही नहीं है भाई। एंगल्स ही नहीं आए तो आप इसकी सही लेती हैं पिक्चर्स? हाँ बहुत अच्छी लेती है। ये कितनी बुरी बात है भाई। ज्यादा घर में प्रोटोकॉल किसको मिलता है, आपको या इसको? इसको। वो कहता है इसको, वो कहता है इसको, क्रॉस हो गया, प्रोटोकॉल ही क्रॉस हो गया। कैसे इसको कैसे मिलता है? ज्यादा बेटियों को मिलता होता है। अकेला बेटा है ना। हाँ अच्छा, तो आप भी अकेली हो? नहीं मैं 3 हूँ। मैं 3 कहती मैं तीन हूँ, वो अकेला, फिर तो इसको मिलता होना है। फिर ज्यादा मिलता है, इसको ज्यादा मिलता है कि वो बेटी है ना। बेटी है ना? हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी किसी आपकी फ्रेंड ने कहा हो कि हमारा दिमाग पढ़ के बता, या हाथ देखना भी आता है आपको? नहीं एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजिस्ट वो ऐसे होता है कि अपने बताती हैं घर के मामले या अपने रिलेशनशिप्स के, तो फिर मैं बताती हूँ अच्छा ये बंदा है सही कि नहीं है सही। अच्छा ये बताएं कि ज़्यादा मार्केट में कॉमन कौन से केसेस आ रहे हैं कि लोगों को एंजाइटी है, लोग डिप्रेस्ड हैं और मेंटली स्ट्रेस में हैं? कॉमन इश्यूज क्या हैं? लोगों को ज़्यादातर एंजाइटी के ही है इशू आजकल, क्योंकि कोईयों को TSD होता है ना, पहले जो आपका हुआ था उसका ट्रॉमा, उसको वो एंजाइटी में बदल गया था, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं है। वो कहते हैं अगर हमने बाहर निकल के बात कर दी तो हमें पागल समझेंगे। तो वो जबकि एंजाइटी तो इवन कुरान इशू पूछ रहा हूँ, एंजाइटी तो होती है ना, किस वजह से आ रही है? ब्रेकअप्स की वजह से आ रही है ज़्यादा, तो यही रेशो चल रही है। ब्रेकअप्स होते हैं या कोई लॉस हो गया किसी को, उस वजह से भी आ रही है। कोई डरने लग जाता है, कोई हादसा हो जाता है उसका। यूनिवर्सिटी की वजह से आती हैं। यूनिवर्सिटी में क्या होता है? बहुत कुछ होता है, देखा नहीं क्या ही कुछ होता है, वहाँ से होता है सब कुछ। हाँ, वहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, वहीं पे डिप्रेशन आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है। ओह सॉरी, वहाँ ही खत्म होती है। ठीक है, जब वो अपने आंखों के सामने ही देख रहा होता है, रुखसत होता है। नहीं मैं पढ़ती हूँ ऑल वुमेन में LC, तो उधर कोई रुखसत हो ही नहीं सकता। उधर तो मसला आ जाएगा, रुखसत हो गया कोई तो मसला आ जाएगा। लेकिन ना यूनिवर्सिटी के अपने बड़े मसले हैं ना, मतलब वो पॉलिटिक्स कह लें तो वो। हाँ अभी आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है? हाँ जी। तो कितनी फीस रखेंगी जब आप अपॉइंटमेंट की? आप किसकी? कौन सी? जब आपके पेशेंट आएंगे, आपके क्लाइंट्स आएंगे। अच्छा रखेंगे, देखेंगे जो जिस हिसाब का होगा, बैकग्राउंड चेक करके उसका। साइकोलॉजिस्ट होता है, वो लोगों को दिमाग पढ़ते पढ़ते खुद नहीं पागल हो जाता? पागल होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। यानी कि आप पागल हैं? हाँ ऐसी लगती ऐसी वैसी क्या पागलपन किया अभी तक? मैं गुस्सा आए तो क्या करती हैं? नहीं गुस्सा, ये साइकोलॉजिस्ट की यही तो होती है कि वो गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं या किसी और चीज। गुस्सा कंट्रोल करने का जब आपको पढ़ाया जाता है, क्या तरीकाकार होता है? गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? माइंड डाइवर्ट करना होता है या एक्टिविटी कुछ करने लग जाओ? एनर्जी अपनी जो है किसी और चीज में लगा दो। तो गुस्सा आया है, पेंटिंग करने बैठ जाओ या ड्रामा देख लो। आपको इस पे गुस्सा आ गया फॉर एग्जांपल, घर में इसने ना कोई इसमें क्यों डाइवर्ट करना है? नहीं, इस पे आपको गुस्सा आ गया, फिर कैसे निकालेंगे? इसके साथ तो मेरे लिए रोज ही होती है, तो हमारा डिफरेंट ही होता है। मार पिटाई नहीं होती, बस वैसे ही लड़ते रहते। स्वीट बच्चा है, ना मारा करें उसको, ना उसको कुछ डांटा भी ना करें। बहुत ज्यादा ले जाए आप। कहती मैं इन्नी तंग। वैसे पंजाबी आती बोलनी? हाँ थोड़ी बहुत आती। थोड़ी पंजाबी बोलो जरा। कोई पंजाबी च एक नसीहत करनी है अपने भरा के इंज ना करया कर। क्या? नहीं पंजाबी इतनी नहीं आती मुझे कि मैं बोलना शुरू कर दूं। क्या? नहीं एक मिनट, मुझे भूल गई है, पंजाबी भूल गया मुझे, सॉरी। ਇਹਨੂੰ क्या कर, मेरियां तस्वीरां सही तरह लिया कर। मेरी तस्वीरें सही तरह लिया कर। नहीं तो मेरे को फैंटी खाएगा। नहीं तो मेरे को फैंटी खाएगा। अच्छा शुक्र है नाज़रीन, इन्हीं की पंजाबी निकली, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं ना पंजाबी में करता हूँ, मैं आपको देख कर ना मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट आई है, फिर उर्दू सारा करते हैं ना, इंटरव्यू सारा अड़ के हो जाए। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन स्यापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਦਾਰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਗੋ ਦੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਹਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਗਲ 'ਚ ਚੈਨਾ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਘੱਟੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਆਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ।
हाँ जी अगे नालों बेहतर है। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं वो छाड़ती ਉਹ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? उन्हें छाड़ दिता मैं। ਉਹਨੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। हाँ जी और सुनाओ नहाते हैं हुणे नहा के आया मैं। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਗਏ? ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ? नहीं साबन ना। ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਨਹਾਈਦਾ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਈਦਾ ਵਾ? नहीं साबन ਸਾਬਣ ਮਲੀਦਾ ਵਾ? नहीं साबन ला के तो फिर नहाई दा ना। ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹਾਤਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਚੈਨ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ? भाईजान लिबर्टी ਲਿਬਰਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਾ ਵਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਦੇ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਲੰਘਦੇ, ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਵੇ ਨਾ। हाँ जी ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ? ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ? बस ब्याह कराना है, ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। ਬਸ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਰੇ? ਵਿਆਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। इसलिए तो मेहनत कर रहे ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋਈ, ਮੈਂ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਹੌਸਲਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਿਆਂਗਾ ਬੁੱਢੀ ਕੋ? खा लांगे खा लांगे ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। अब बस ब्याह कराना ਕੋਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਣੀ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? बस हो ही आवे भावें जिवें मर्जी हो। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੋ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਣੀ ਹੋ? नहीं जिथों लभ गई बस। ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈ। ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ? आहो ਵੱਡੀ लभ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ आहो इंजी ਹੈ? इंजी ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ? ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਕਿ 15-16 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ 15-16 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ? ਨੈਟ ਸ਼ੈਟ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਤੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਫਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਲੈਪਟਾਪ ਆਪਣਾ ਫਟੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਵਿੰਡੋ ਨੇ, ਵਿੰਡੋ 10 ਵਿੰਡੋ 8 ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੀਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੈਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਨੇ? ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਪੈਨ, ਤੀਲੇ ਵਾਲਾ ਪੈਨ? ਕੋਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨ ਨੇ ਔਰ ਲੈਪਟਾਪ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਹਾਂ 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 ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਰੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਸ ਵਾਧੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਂ? ਵਾਧੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਕੈਵਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਗਾਉਂਦੇ ਗੂੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸੁਣੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ? ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਫੈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਫੈਲਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਮੇਲ ਮੂਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਾਈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਖਿਲਾਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਗਈ? ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ। 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਪੈਂਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ? ਉਹਦੇ ਪੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਕੀ ਰੌਣਕੀ ਜੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੈਨੂਇਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰ ਲਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ
ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਐਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਵੜੇ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਗਰਾਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਰਪਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕਿਦਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਰੋ ਵੀ ਲੈ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਮ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਡੱਕੇ ਡੁੱਕੇ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਪਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਟੋਟਲ 1000 ਕਿੰਨੇ ਆ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਜੀ 6 ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਤੀਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ 4-5 ਤੀਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫੱਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਬੋਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਏ ਅੱਛਾ ਜੀ 4 ਵੀਲਰ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਵੀਲਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਉਹ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ 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 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੁਝ ਜਲਾਬਾ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜਲਾਬਾ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਫੌਰਨ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ 버ਗਰ ਲੱਭੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਗੜ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਜੀ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਰ ਵੀ ਪਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਫਿਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾਈਮਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੌਕਸ ਫੁੱਲ ਚਾਕੋ ਚਬੰਦ ਦਸਤਾ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ कैसा दफ्तर है बहुत शुक्रिया यार ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਰੇਜ਼ ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਰਿਕ ਸ਼ਾਰੇਜ਼ ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਰੇਜ਼ ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਏ ਕਿ ਰੋਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੋਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਗਮ ਵੀ ਬੇਗਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਰੀ ਅਜ ਤੱਕ ਬੇਗਮ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਡ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੇਗਮਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆਖੇ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਵਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਇੱਥੇ ਦੋ ਰੁਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਰੁਖ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰੁਖ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਥੱਲੇ ਢੱਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਥੱਲੋਂ ਰੋਂਦੇ। ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਸਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਵਾਤੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚ ਚੜਨ ਦਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ? ਬੱਚੇ ਦੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਗੇ ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਥੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਥੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਇੰਜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਪਨਾਹ ਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤਰਸਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਇਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨਹਾਈ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਹਨਾ? ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਨਹਾਈ ਪਸੰਦ ਆ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਕੰਮ ਘੁਲ ਸਕਦਾ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਐਡਾ ਕਿ ਤਵਾਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਇੰਨਾ ਤਬਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਏ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਚੇਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ, ਹੁਣ ਢੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ। ਚੇਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਮਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬਿਸਕਿਟ ਡਿਬੋਇਆ ਔਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਘੁੰਮ ਫਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਤਾਰੇ ਸੀਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਨਰ ਦਾ ਵੇਟ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਡਿਨਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी की हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? इनके अम्मी अबू ये साथ ही है मेरे। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਆਣੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਹਨਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रोल रहते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को तंदुरुस्ती दे, इनके लिए दुआएं करने हम ही तो बैठे हुए हैं। नहीं दुआएं तो होती हैं ना। आप जब बंदे की उम्र ज़्यादा हो जाती है फिर वो कहते हैं अम्मी ज़रा इसको पकड़िएगा, मैं ज़रा हांडी बना लूँ, अम्मी ज़रा इसको पकड़िएगा, हमने बाजार जाना है। ऐसे तो होता है ना, फिर मदद करनी पड़ती है बहू हाँ, की। वो तो जाहिर सी बात है, हेल्प तो करनी पड़ती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम मिलजुल के करें और इसको भी साथ ही रखें। इसको साथ ही रखें। आउटिंग पे इकट्ठे जाते हैं या आपको छोड़ जाते हैं? नहीं नहीं, इंशाल्लाह इकट्ठे जाते हैं। ये देख लें, आपके सामने सबूत है। ये तो शॉपिंग करने आए ना, ईद के दिन है। हाँ, तो ये आउटिंग भी और शॉपिंग भी सब कुछ। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के, एक दूसरे की तरफ लोग गेस्ट जाते हैं, और जब कोई मेहमान आए तो उनमें ऐसे जालम बच्चे होते हैं कि जिनसे बंदा इरिटेट हो जाता है कि ये बच्चे घर क्यों आ गए हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें हिला देंगे, आपको भी नहीं पता होगा हमारी चीज़ कहाँ पड़ी थी 5 साल से। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र, अच्छे लोगों से ताल्लुकात हैं तो अच्छे ही लोग आते हैं। आंटी ने गाली मुकाती। आंटी कहते साडा अच्छे लोगों नाल ताल्लुकात आ, इंज दे लोग ही नहीं आते साडे कोल। अच्छा ये बताएं, आप अच्छी सास हैं या वो अच्छी बहू हैं? वो तो बहुत अच्छी बहू है, मैं कितनी अच्छी सास हूँ ये वो बता सकती हैं। अब उनके पास जाएं पूछने के लिए? हाँ जी, उनको पास बुलाएं इधर, बेटे और बहू को बुलाएं इधर। मैं अभी पूछ लेता हूँ। ये जी सास की इज्जत बचाने के लिए बहू आ गई हैं। आप ज्यादा अच्छी हैं या ज्यादा अच्छी हैं? हम दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा दोनों अच्छे हैं। ताली जो 2 हाथ से बजती है ना, वो बहुत अच्छी बजती है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया बेटे की शादी की है? बेटे की शादी को 2 साल हो गए। ये मेरा
पोता अभी 9 मार्च को हुआ है 1 साल का। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर। अभी 2 साल हुए हैं, अभी तो नहीं नहीं है, अभी तो 4 लाख ही नहीं खत्म हुए होने, लड़ाई कहाँ से होनी है? ऐसी चाहते हैं लड़ाई हो। देखिए ना, मैं तो फुफ्फो वाला रोल अदा कर रहा हूँ ना यहाँ पे। नहीं नहीं, फुफ्फो भी बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह से। अच्छा, हाँ जी, फुफ्फो भी इनके साथ बनती है? हाँ जी बिल्कुल बनती है, वो देख ले, शॉपिंग करने आए ना। अच्छा, 2 साल में हस्बैंड के साथ कोई लड़ाई वगैरह हुई कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलती रहती है ना फिर जिंदगी का लुत्फ। वो किस बात पे होती है? कोई गिला शिकवे क्या होते हैं? छोटे मोटे गिले शिकवे जो रोजमर्रा के होते हैं। लेट आते हैं घर, हाँ जी, है ना? दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, लेट आते हैं नहीं, वर्किंग में वर्किंग में, काम में, लेट घर आना, और शॉपिंग पे इजीली ले जाते हैं या कहना पड़ता है बार बार? नहीं इजीली, अभी देख लें आपके सामने ले आए हैं। नहीं, कई दफा तो ऐसा होता है ना, अगर सास और बहू की बनी हो ना, फिर अम्मी का दबका पैदा तो कहना चलो चलिए जिसे जाना। ज्यादा आके तुम ना क्लियर कर दो। भाई आप भी आ जाएं भाई, मासूम से आप हैं, कहाँ आपकी शादी कर दी है? अभी पढ़ने के दिन थे आपके। नहीं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई तो शादी की है, मेरी पसंद की शादी, हाँ लव मैरिज है माशाल्लाह। उन्होंने इंसिस्ट किया था, बिल्कुल किया था, मेरी पसंद की आपने ऐसा कितना जोर डाला था कि घर वालों को मजबूरन आपकी शादी करनी पड़ी? पूरा नहीं करनी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेटल हो गया था, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया था, तो मैंने बाबा से कहा कि मेरी शादी कर दी, उन्होंने कहा बस ठीक है कर देते हैं। में तो बंदा 2-4 साल के बाद ही खड़ा हो जाता है। पैरों पे खड़ा होने से मुराद के पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना कि पैरों पे खड़े हो जाना है, एक अच्छी के नाम है, आपकी इनकम आ जाए, आप सेटल हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है, फिर शादी करें। लव मैरिज कैसे हुई थी? कि कहाँ देखा था इनको? इनको मैंने कराची में देखा था। अच्छा, ये कराची से हैं? कराची आप क्या करने गए थे भाई लाहौर से? बस मैं गया था मामू के बेटे की शादी अटेंड करने, तो वहाँ पे ये पसंद आ गई, मैंने घर वालों को बता दिया। निवासी हैं, अच्छा अच्छा, ये उधर की निवासी हैं अच्छा अच्छा अच्छा, ये शादी पे आई हुई थी, इन्होंने देखा जी। इन्होंने कहा कि मामू की शादी थी, मेरे ही मामू की शादी थी। आपके मामू की। तो जब इन्होंने इनका जब प्रपोजल आया, आपने फिर क्या रिएक्शन था आपका? जो रिएक्शन होता है, फोन कॉल की कि हमें बच्ची चाहिए, उन्होंने कहा ताड़ी हाँ, बस। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ। मसला ये था ना, क्योंकि माशाल्लाह वो मेरी भतीजी है, हम उनके देखे भाले हैं, वो हमारे तो नाम भी नहीं बन सकती थी और कोई ऐसा इशू भी नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने साथ दिया, अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर इसने भी तो सच आना। बताना, बहू साथ खड़ी है, ये नहीं आपने सोचना। जब इसने पहली दफा कहा कि मैंने वहाँ शादी करनी है, आपने मना किया था कि हाँ की थी? अच्छा, अगर सच सच बताना ना, तो मुझे बहुत शौक था कि मेरे बच्चे की ना लव मैरिज हो। जब इसने मुझे बताया ना, नाम मेरी आंखों में इस बच्ची का चेहरा आया, कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ यही खुशी थी कि कितने जाना? बेटा जो है वो पसंद की शादी करेगा। वेरी गुड। ये आपको यकीन नहीं था कि ये लव मैरिज कर सकता है? हाँ, क्योंकि ये कहता था मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, बस एक डायलॉग बना हुआ था इसकी लाइफ का, लेकिन इसने जब ये बात की तो मैं बहुत खुश हुई। वाह जी वाह, ऐसी कोई धमकी देने की नौबत तो नहीं आई कि मैं ये कर लूंगा, मेरी वहाँ शादी कर दूं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। माँ जी से बात करके पता चल रहा है भाई, वो ब्रॉड माइंडेड हैं और अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं और कोऑपरेटिव हैं। मुझे ये बताएं कि इतनी दूर शादी आपने करवाई, आप स्टडी वगैरह कंप्लीट हो गई थी आपकी? हाँ जी, मेरा बैचलर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है और अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पोस्टेक्स में मेरी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। अच्छा, वैसे देखने को नहीं लगता आपकी इतनी उम्र होगी ना, सभी कहते होंगे आपको। अच्छी बात है ना, एवरग्रीन। 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 हाँ, हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ये नाज़रीन ये चेक करें, हाँ जी ये देखें, अब बात कर सकता तो मैं इससे भी कर लेनी थी, अभी छोटा है ना, अभी बोलता नहीं होगा। हाँ, जब बड़ा होगा ना फिर मम्मी पापा की लव मैरिज आप टीवी पे देखोगे। सारी दुनिया ने देख ली है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है, आप हंस क्यों रही हैं, शर्मा क्यों रही हैं? इंटरव्यू आपका लेने लगे हैं हम। जी, वो आपकी बात पे। क्या नाम है आपका? मैं मिनाहिल प्यार। मिनाहिल, आपका नाम क्या है? बिस्मा। बिस्मा। माँ जी दोवें बेटियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ? बेटी है तो भतीजी है। अच्छा, भतीजी है, बेटी है। शॉपिंग पे आए हो? शॉपिंग पे आए हैं जी। ओके, मिनाहिल आप क्या करती हैं? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। क्या टारगेट सेट किए हैं, क्या करना है जिंदगी में? मैं एक तो मैं साइकोलॉजिस्ट बनने का मेरा है ड्रीम, और दूसरा मैं कराटे में भी हूँ। ओके, कराटे? हाँ जी, कराटे में ग्रे बेल्ट हूँ। अच्छा, वो हड्डियां तोड़ देती हैं? ये भी वो वाला नहीं है मेरा लेवल, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, ग्रे स्टार्टिंग है, यानी कि ये सोच रखा है किसी को फैंटी लगानी है। बेल्ट। जी। अच्छा, वो अभी पहले एक लड़की का इंटरव्यू किया, वो भी साइकोलॉजिस्ट थी, आप भी वही बनना चाहती हैं? ये क्या हो गया, लड़कियों को दिमाग पढ़ने की बहुत आदत पड़ गई है आप लोगों को, जी। है ना? आप क्या करती हैं मैम? मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप भी स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर की? क्या कर रही हैं? मैं सिंपल बीए। सिंपल बीए कर रही हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, हमारा टॉपिक ये है कि मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं,
ठीक है। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जब कोई मेहमान आ जाता है बिला वजह का, एक तो खुशी गमी होती है ना, ये इनविटेशन दिया, कोई इवेंट है घर में, वो समझ आता है। एक तो बिला वजह का मेहमान आए तो क्या दिल में ख्याल आता है जब पता हो कि इतनी गर्मी में उठ के खाना बनाना पड़ेगा? ना बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने आना अपनी किस्मत का खाना है, जो कुछ है उसके आगे हाजिर करेंगे, जितना भी हमारे में सख्त है। मेहमान नवाजी तो होती है, मगर वो मेहमानों के साथ इस तरह के जालिम बच्चे होते हैं, वो आपकी चीज़ें इधर की उधर कर देंगे, उधर की इधर कर देंगे, आपकी मेकअप किट हिला के रख देंगे, गिलास तोड़ देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल लाएंगे, आपको भी नहीं पता होगा 10 साल पहले कहाँ घूमी थी। ऐसे होते हैं ना, वो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं ना बुलाएंगे, नेक्स्ट टाइम उन्हें मना कर देंगे ना, उनसे माफ़ी मांग लेंगे। तो माफी मांगने फिर नेक्स्ट टाइम ना आप आएंगे। बच्चों को लेकर ना, आप खुद आ जाए, बच्चों को रहने दें। ठीक है। घर में ज्यादा काम कौन करता है आप दोनों में से? आप करती हैं जी। हाँ? ये मुझे थोड़ी सी तेज लग रही हैं, क्योंकि ये काम नहीं करेंगी, आपके कहने में नहीं आएंगी, क्योंकि ये साइकोलॉजी पढ़ने जा रही हैं। आप काम क्यों नहीं करती? नहीं करती, जब घर होती हूँ अब कर देती हूँ, जब नहीं होती कैसे कैसे ड्यूटी लगी होती है? बहनों ने ना अपने काम बांटे होते हैं कि तुमने ये करना, मैंने कि जब शादी हो गई है इसलिए फिर मैं ही हूँ, तो मैं ही करती आपकी हूँ। शादी हो गई है? नहीं, ये बड़ी बहन की? बड़ी बहन की हुई है। अच्छा, हाँ सच, आप तो कजन है। कजन है। अच्छा, घर में फिर ड्यूटियाँ कैसे लगी होती हैं? आप अकेली हैं अभी? नहीं, हाँ जी, मैं तो अभी अकेली हूँ, बड़ी हूँ। छोटी बहन वो काफ़ी छोटी है, वो 5 साल की है, तो इसलिए फिर जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मम्मा करती हैं, बाकी काम जब मैं घर होती हूँ। किचन से कितना? फिर ये कर लेती है, वापस जब आती है ना कॉलेज से, तो फिर इसकी ड्यूटी लग जाती है, शाम का फिर ये किचन का कर लेती है। अच्छा, जो बच्चे साथ स्टडी भी करते हैं, लड़कियां यूनिवर्सिटी में जाती हैं, किचन से कितना वास्ता होता है उनका? बहुत कम। इसका बिल्कुल कम है ये किचन च अच्छा, पता ही नहीं कि इन्होंने किचन च हुंदा की है। ना। हाँ जी, किचन च बस है कभी हाथ बटा दे, बर्तन वगैरह धो ले, अदरवाइज कोई नहीं। ये ऐसे क्यों है जी? मुझे पसंद ही नहीं है। फिर मैं थक जाती हूँ। मतलब इतना बड़ा कोई थक जाती। शाला 7 मरले का घर है हमारा। मैं कहा भाई 7 मरला किचन कहन लगे। 7 मरले का घर है, किचन भी बस नॉर्मल ही है। ठीक है, बर्तन एक कोने च पिया थक जाती है ना जाके। ठीक है। छोटी फैमिली है, 2 बेटे 2 बेटियां, एक बेटी की शादी होगी, वो एयरफोर्स में होती है, और एक बहू है, एक बेटी है, एक अभी निकाह किया, उसकी वाइफ स्पेन में होती है, तो फिर अभी अब 3-4 अफराद ही हैं घर में। काम भी उतना होगा, थोड़ा सा काम होता होगा। ठीक है। आप भी काबू में नहीं आती होंगी कि मामा मैंने नहीं करना, मेरी स्टडी का टाइम है? नहीं, मैं ट्यूशन एकेडमी जाती हूँ, तो इस वजह से। कुकिंग वगैरह आती करनी? नहीं, वो नहीं आती। आपको? कम आती है। बस नाज़रीन, काम भी नहीं, कुछ भी काम शाम भी नहीं। हाँ, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ईशा। आपका नाम क्या नाम है? आयशा। आयशा और ईशा दोनों बहनें? जी बड़ा पास नाम रखा हुआ है, आयशा और ईशा। जी, रख दिया बस। बहुत है माशाल्लाह, प्यार ही बहुत है। कैमरे पे कह रही है ना, घर जाके पमाए एक दूसरे के हाथ गिरेबान हो जाए, लड़न लग जाए। बहुत प्यार है माशाल्लाह, बहुत प्यार है। कैसे ये बहुत आपने तंजिया किया कैसे? क्योंकि कभी बनती नहीं है ना, बहुत प्यार है। किस तो वही होती है जहाँ प्यार होता है। ये तो गल ही यार, लड़ाई भी करी जानी तो फिर कही जाना साडा प्यार ही बड़ा। किस बात पे ज्यादा लड़ाई होती है? ये मुझे अपनी चीजें नहीं देती है। कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं देती है? मेरे कपड़े पहन लेती है, और मैं जब पहनूं तो कहती है क्यों पहने मेरे कपड़े। पूरी बात है वो आप सेम, दोनों का यही सेम है। भी अपनी चीजें नहीं देती। अपनी देती चीजें। आप दोनों में से बड़ी कौन है? ये आप बड़ी हो, कितने साल बड़ी हो? 22 इयर्स की मैं। मैं 16 इयर्स। 6 साल का फर्क है, तो आपको चीजें मतलब एक दूसरे की इस्तेमाल कर लेते हो? आ जाती हैं सेम टू सेम। हाइट देखें, हाइट सही है वैसे। आप तो आके मुझे फोन कह रहे थे हाँ जी भाई ले ले इंटरव्यू ले ले। मैं पीछे इतने ज्यादा इंटरव्यू देके। एग्जीक्यूशन भी अच्छी हो जानी चाहिए आखिर तक। तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे हाई है? ये आ नहीं रही थी, ये शर्मा रही थी, ये डर रही थी? वैसे ही मुझे मजा आता है इस चीज में, और मेरा शौक है मैं भी ऐसे एंकर बनूं। आप हाँ बन जाओगे, जैसे आपको शौक है, जैसे आप बस इससे लड़ना छोड़ दो। ये मैं नहीं लड़ती, ये लड़ती है मेरे साथ। है लड़ाई कभी ऐसी तो नहीं पहुंच जाती कि एक दूसरे के बाल पकड़ लिए हों? एक बार पहले हुआ था, एक बार काफी देर बाद पहले हुआ था। अब नहीं ऐसा होता, क्योंकि अब हम जॉब्स करते हैं दोनों, तो इस वजह से अब नहीं होता। आप क्या जॉब करते हो? मैं वैसे ही हेल्परी में करती हूँ। अच्छा, ये क्या करती हैं? मैं भी जॉब करती हूँ फार्मेसी में। वाह जी वाह, फिर आपको मेडिसिन का भी सारा पता? जी अल्लाह का शुक्र है। 1 ईयर हो गया मुझे। 1 ईयर हो गया इसका? तो जरा सा सर दर्द हो तो उधर दवाइयाँ खाना शुरू हो जाती है। वो दवाइयाँ पास जो पड़ी होती हैं? बुखार हल्का सा गर्म हो जाए जिस समय ऐसे दवाइयाँ लेते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या करना चाहिए वैसे? कुछ भी नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए ताकि ज्यादा बुखार हैवी ना हो। जैसे आप इसको करती हैं? मैं इग्नोर करती हूँ इसको।
करती हूँ करती हो ना? वाह जी वाह, आप दोनों का फिर मुकाबला और कंपटीशन भी होता होगा दोनों का कि मैं जॉब से पहले आई हूँ, ये पहले आई है। पहले आती है, मैं रात को 12 बजे आती हूँ। फिर घर के काम कौन करता है भाई? ये नहीं करती, हाथ भी नहीं लगाती काम को, खास तौर पे बर्तनों का हाथ नहीं लगाती है लड़की। ये क्या कहती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं? हाँ, कहेगी मैं सारी रात काम करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, खुद ही करो, कपड़े धो मैं, बर्तन धो मैं, सारा कुछ मैं ही करूँ। ना जुल्म हो रहा है 16 साल की बच्ची पे, ये 22 साल की लड़की ये 16 साल की छोटी बहन पे जुल्म कर रही है। नाजरीन साथ हूँ मैं मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा, आपने हाँ मैं आपके साथ हूँ बच्चे। मुझे ये अच्छा ये हाथ नहीं लगाती, खाना कौन पकाता है? मैं रोटियां बना लेती, मेरी मामा खाना बना लेती ये है। सिर्फ खाती हैं? खाती है, वो भी नहीं खाती, वो भी नहीं खाती, रात को 12 बजे आती है। मैं स्कूल से आऊंगी, रोटी नहीं बनी होगी, मामा कहेगी उठ के रोटी बना लो, कहेगी नहीं जी मैं तो नहीं बनाऊंगी, वैसे ही चली जाएगी। हाँ, ये आज सारा गुबार निकाल रही है, ये ढूंढ रही थी कोई बंदा माइक लेके आए, ये शिकायतें लगाए। शिकायतें लगाओ। अच्छा, शुक्र है गजरा लेके दिया है एक मुझे, इसने गजरा ले दिया? ले दिया। वाह जी वाह। तो इसको इसने खुद लिया या आपने लेके दिया? इसने मुझे लेके दिया ना, अभी मेरा अपने लिए लिया, अभी मेरा 400 देना है, इसने इसी बाजार में देना। अभी अब आपका बैलेंस भी चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको हमने सारा आपसे पूछ लिया पर्सनल लाइफ का। ऐसे कौन से मेहमान हैं जो घर में आए तो चेहरे पे बल आ जाता है कि यार ये कहाँ से आ गए हैं, कब जाएंगे? पहली बात, हमारे घर मेहमान जल्दी आते ही नहीं। पता नहीं बताती हूँ मैं, बताती है आपसे नहीं मैंने पूछ रहा, ये सही बताएगी। मैं बताती हूँ, मेरी पुप्पो वो क्या करती हैं? बस आ जाती हैं, बैठी रहेंगी, वैसे तो इतना आती नहीं है, पर जब आती है ना सर दर्द हो जाता है मेरा। ज्यादा बोलती हैं? बोलती भी नहीं है, वैसे सड़ियाँ ही फेंकती हैं। चलो पुप्पो से सॉरी भी कर लो। सॉरी पुप्पो, पहली बात वो देखेंगी नहीं। अच्छा, वो सड़ियाँ फेंकती हैं और फिर सर दर्द करने लग जाता है। अच्छा ये बताएं, कितना मुश्किल होता है, कोई मेहमान आ गया और गर्मी फुल है, फिर मेरे लिए मुश्किल होता है किचन में खाना बनाना होता है। मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई काम नहीं करती है ना, जॉब पे होती है। जैसे मेरे लिए मुश्किल होता है, मुझे ही बोतल अच्छा डालनी पड़ती है, मुझे अच्छा, अब ये बताओ कि मेहमानों में से कौन से ऐसे जालिम बच्चे होते हैं जो आगे ऐसी ऐसी शरारतें करते हैं कि सारा घर आपका उल्टा के रख दिया है? ये नहीं होने देती, मैं नहीं होने देती, बच्चों से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, और जो गंदे बच्चे होते हैं ना उनको संभाल भी लेते हैं। कैसे फेंटी लगाई है कभी किसी बच्चे की? हाँ, बहुत बच्चों की, बहुत बच्चों की। नहीं, बच्चे बात ही नहीं मानते, गिलास तोड़ दिया है, बेडशीट इकट्ठी कर दी है, लाइटें ऑन किए जा रहे हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर कैसे बच्चों को संभालना होता है? एक लगाती है, वो चुप करके बैठ जाते हैं। मैं पुप्पो भी हूँ तो मैं संभाल लेती हूँ बच्चों को, खाला भी हूँ। फूफो भी हो? हाँ जी, भाई की शादी हुई है? कजन ताए के बेटे लोग हैं, सारे का फैमिली है, हम एक फिर आपको पता है बच्चों को कैसे डील कैसे करना है? जी। आप तो वैसे खुद बच्चे हो, आपने छोटे हुए ऐसी शरारतें की हैं कि लोग आपसे तंग आते मैंने हैं? बिल्कुल नहीं शरारतें की, मैंने बस छोटे होते रोई हूँ, बाद में जब मैंने अपना होश संभाला मैंने बिल्कुल शरारतें नहीं की। हाँ, ऐसे ही चलता रहा है। सही है। बड़े होकर क्या बनना है? मैंने क्या बनना है, जॉब ही करनी है, सारा कुछ यही है। आजकल जॉब ही करनी है, आजकल जॉब का ही जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर सीखो, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, और जितने मर्जी पैसे कमाओ। इसको बोलो अपने लिए भी दवा ले आया करे जिससे इसका दिल करे कि मैंने काम भी करना। पता नहीं ये कब होगा, पता नहीं ये कब होगा। अपनी होश में देख रही हो कि नहीं ये चीजें होती? नहीं, इसकी तो शादी भी हो जाएगी तो ये नहीं करेगी कुछ भी, इसकी शादी भी हो जाएगी, ये नहीं कुछ करेगी। फिर तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ता है ना, मजबूरी होगी होती है नहीं करना, और शादी करके करना है सारा कुछ। क्या बात है, क्या घर नहीं करना, नहीं जरा अगले की उसकी अम्मी के घर करना। सही बात है, मैं तो उसके घर नहीं करूंगी, मैं अपनी माँ के घर सारा कुछ कर रही हूँ। देखे नाज़रीन, ये ऐसा मिजाज हर घर में होता है, एक का ज्यादा काम कर रही होती है, कम कर रही होती है, नोक झोंक चल रही होती है। वैसे प्यार तो दोनों बहनों का होगा ना आपस में? है, सोती नहीं हूँ इसके बिना, ये बात है। ये आपका तकी है? इसके बगैर नींद नहीं आती मुझे। ये क्या नींद की गोली है? ना, ये चाय है? पता नहीं ये क्या है। पता नहीं ये क्या है। साढ़े सामने लड़न दिया मैं इन्होंने उथे जाके अभी पाके आने घरों चल जाना दोवां भैणां ने। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, थैंक यू। शुक्रिया, सलामत रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयशा। आपका? फातिमा। सोच के बताया, फातिमा भूल जाती हैं आप अब 2 मिनट बाद अपना नाम? नूर फातिमा। आपका पूरा नाम? आयशा ही है मेरा पूरा नाम। पूरा नाम आयशा है, यानी कि टोटल घर वालों ने सिर्फ आयशा रखा है। कॉमन बहुत है लेकिन हाँ आयशा ही है। लेकिन आयशा ही है। आपस में क्या लगती हैं? कजन है मेरी छोटी। वो
वो इसका भाई है, वो भी कजन ही है। तो आप इनको शॉपिंग पे लेके आई हैं? हाँ यही समझ ले, किस खुशी में? ईद की खुशी में। ऐसे कजन्स कहाँ मिलते हैं जो आके ईद की शॉपिंग करवा दें? ये आप बस इसी खानदान में मिलते हैं, आपको कोई और मुझे नहीं लगता मिलेंगे। इतना प्यार, आंखों में आंसू आने लगे मैं वरना तो कजन्स की तो आपस में आजकल बनती नहीं है। आजकल मुझे लगता है बनती ज्यादा है, पहले शायद ना बनती हो, आजकल काफी क्लोज है कजन। क्या वजूहात हैं कि ज्यादा बन जाती है? मामू की औलाद है शायद इसलिए। अम्मी की तरफ से हो तो ज्यादा बनती है। ऐसा ही है। ये चाचू के होते तो आपको ना माई फुट मैं आपको शॉपिंग करवाऊं। हाँ यही सीन है, ऐसा ही है, ददयाल ननियाल का फर्क आ जाता है। आ जाता है ना। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कंप्लीट की है, अभी फ्रीलांसिंग करती हूँ मैं। अच्छा, या क्या स्किल्स हैं आपके पास फ्रीलांसिंग के? कम्युनिकेशन स्किल्स है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मैं यूएस कैंपेन्स में हाँ हैंडल कर रही हूँ उनकी। यूएस बेस्ड यानी कि आप अच्छा खासा कमा रही हैं। सही है। अच्छा हालांकि बर्थडे आ जाती है कजन्स को लेकर, डॉलर्स हो जाते हैं 100-200, मतलब कि सही है। हाँ बस ऐसा ही है, सही है। डॉलर्स में जरा पैसे ज्यादा बन जाते हैं। हाँ फिर कजन्स फरमाइश करते हैं कि आप ही आपकी इतनी पेमेंट आई है, हमें भी ले जाएं लिबर्टी। ऐसे ही है, मैंने कहा आज फिर ले जाते हैं कोई। हाँ तो आपके अपने बहन भाई हैं? मेरे अपने हाँ छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन भी है। उनको भी लेके आती हैं? उनका कल स्कूल है ना, तो उन्हें इसलिए नहीं लाई, इनका स्कूल है नहीं। अच्छा 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 अच्छा। मुझे ये बताएं, घर में ऐसे कौन से मेहमान आते हैं? हमारा टॉपिक ये है कि जिनको देखकर माथे पे बल आ जाता है कि ये कहाँ से आ गए हैं, जाएंगे कब? मुझे लगता है अनइनवाइटेड गेस्ट, जिनका पता ही ना हो कि इन्होंने आना है और एकदम से बस आ जाएं और आपके प्लान कैंसिल हो जाता है। इंट्रो दिया ना अभी से 40 मिनट पहले, या जब हमने शो शुरू किया है, तो मेरे इंट्रो में यही था कि एक तो होता है इवेंट इनविटेशन, एक होता है खुशी गमी, एक बिन बुलाए जो मेहमान होते हैं ना। यार ये क्यों आ गए, क्या सीन है? सही है। आयशा अपने ध्यान में बैठी रील्स देख रही है, मोबाइल पे लगी है, तो फौरन उठ के चाय बना अटेंड करना पड़ता है कि नहीं हम ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टेज वाइज चलता हूँ। आयशा रील्स देख रही है, बेल हुई है, मेहमान आ गए हैं। अब ये तो है ही कि इनको चाय पानी पूछना है। आपने पहले सबसे आपकी पूरी कोशिश होनी है कि ये पानी पे मान जाए, क्योंकि बोतल खोल नहीं डाल के आ गए। गर्मियाँ भी अब आ गई, इजी है। हाँ। फिर आपकी कोशिश होनी है कि अगर बोतल पे नहीं माने, चले चाय बनानी पड़ जाएगी। हाँ। वो थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल में है, थोड़ा सा आपने वो चाय बना ली। हाँ। अब ऐसे गेस्ट भी होते हैं चाय पी के जानबूझकर आधा पौना घंटा बैठेंगे कि ताकि वो खाने की तरफ टाइम चला जाए। हाँ, तो फिर दिल में क्या चीजें आती हैं ये बताएं तो? जब किचन में गर्मी हो और पता भी चल रहा है कि ये उठ नहीं रहा, ये खाना खा के जाएगा, फिर ये होता है कि फिर मम्मा है ना हैंडल कर, मैं फिर बोलूंगी मैं इनके पास बैठ जाती हूँ, आप जाए किचन में करें फिर ये सारे काम। रियलिटी है ये, ऐसे ही होता है। मामा बेचारी को धक्का दे देना। मामा बेचारी फिर हाँ हैंडल करती हैं सारे के सारे, फिर हम बच्चों में जरा लग के फिर उन्हें कंपनी दे देते हैं। अब अपने बच्चों में बात की, ऐसे किस किस्म के जालिम बच्चे होते हैं रिश्तेदारों के? कोई आ जाते हैं जो घर आपका उलट पुलट कर देंगे, गिलास भी तोड़ रहे हैं, बेडशीट भी इकट्ठी कर रहे हैं और गंदगी फैला दी है। बल्कि मुझे लगता है सारे बच्चे ही ऐसे हैं। ये जो जनरेशन हमारी जैसे गुजर गई है ना, जहाँ अम्मा ने बोला आप बैठे रहो, हम बैठे रहते थे। आजकल तो उन्हें कुछ कह भी दो तो अपनी माँ को जाके तारे तो इन्होंने डांटा हमें ये चीज यहाँ से नहीं उठानी। ये आंटी कितनी गंदी है। ऐसे ही आजकल के बच्चे बहुत ऐसे हैं, है ना? तो फिर उनको कैसे हैंडल करती हैं? कभी किसी बच्चे को मारा भी है, उसकी मम्मा का ध्यान उस तरफ है, ध्यान करके तौन चला देती है? नहीं डांट जरूर देती हूँ, लेकिन मैं उसकी मम्मा को कह देती हूँ कि इसे समझाएं ये ना करे, ऐसे ही है, ताकि वो बेचारे ये ना बोले तो हम अनइनवाइटेड है, ऊपर से हमारे बच्चों को भी ये लोग बोल रहे हैं, तो फिर बद्दुआएं देके जाती है, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो बुरा ना लगे ना, है तो गेस्ट ही ना आफ्टर ऑल। तो गेस्ट ही ना। वैसे आजकल के जो हालात हो गए हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं, बिला वजह किसी की तरफ मेरी ये राय है कि थोड़ा अरसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अगला किस हाल में आप कैसे जा रहे हो। बता के जाना चाहिए ताकि वो भी प्रिपेयर्ड हो आपके लिए कि हाँ बस कर ले। ऐसे ही होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बर्फ पा के गिलास पूरे कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, ये था आज के वीक का स्यापा। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰੋਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਰਦਰਦ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਸਦਾ ਘਰ। ਬੱਚੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 15-16 ਜੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਿਆਪੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਵਿਦ ਸਿਆਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਝੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੌਗ ਪੱਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।